Hello, hi, welcome to the India's largest learning platform. This is Neha Kumari, your SST educator. Welcome to the class, Bachcha Log. And yes, welcome to the India's largest learning platform, which is an academy. This is an academy's channel, CBSE 8th. Let's crack CBSE 8th. Today, Today's topic is about understanding our criminal justice system, how criminal justice system is actually working, what are the who are the players who are involved in this system, what are the roles that they play. करेक्ट सो दैट बेसिकली आपने जो पार्लियामेंट में जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स सीखे या कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम में जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स सीखे पार्लियामेंट हु आर मेकिंग द लॉज देन आपने जो अंडरस्टैंडिंग जुडिशरी में आपने देखा कि व्हाट डज इंडिपेंडेंट जुडिशरी डज एंड हाउ दे आर प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द people, the common people, है ना. So basically everything is being in it's a compilation in order to understand this particular topic. Okay, before going any further, let me introduce myself. This is Neha Kumari. I have done my graduation, post graduation from Nehu University. I have 1 year of experience in teaching in KV school, where I was teaching class 11th and 12th. The subject that I was teaching there was accountancy and business studies. Currently, Currently, I am pursuing B.Ed from IIMT University. You know why? Because I have a passion of learning and teaching both. So, yes, I am teaching on an academy's platform. Simultaneously, I am also studying on an academy. But B.Ed I am doing from a university, recognized university. Okay. So yes, CBSE gives you wings. CBSE is called as the India's largest learning platform. There are multiple reasons. Number first reason that I am going to give you is about that you get to access unlimited live and recorded classes. Come on, if you don't have time, you don't have the free time that you have, then you can do what you are unable to attend the live classes. Suppose, okay, then you can also go in the app and learn your things from the recorded sessions. So that way it is also very very good. The second point that we are giving you is about India's best top educators. You are getting what? India's best educators जो अपने subjects में they are very very well versed. They have the specialization in their subject and they are teaching you, so you are in good hands. Correct. These are basically conducted on live classes होती है हमारे पास, where you are getting experience for free. So why not to start learning from the best, right? Then here you get to prepare with India's top educators who have experience for like more than 20 years, 5 years. कुछ लोग new भी हैं, but still they are very very organized. They are explaining your doubts, you are explaining your subjects in a very synchronized way, है ना. So if you join a plus on the Unacademy, what benefits you are actually getting? India's best educators, as I have already said, interactive live classes. Suppose the live classes are going on, so you have any kind of doubts, you want to ask something from your educator, so you can ask your doubts and your queries from the educator, because the live classes are very very interactive. Through chats you will be able to ask your questions. Yes, it simulates in the same way the classroom is. Classroom में भी you ask your teacher, करेक्ट. आप लाइव पूछते हो तो यहाँ पे भी आप लाइव पूछते हो और लाइव ही आपको जवाब मिलते भी हैं. देन नेक्स्ट वन इज योर लाइव टेस्ट एंड क्विजेज. यहाँ पे वी टेक quizzes and live test where you are well prepared, and you also get to enhance your knowledge, है ना. ये सारे बहुत फन तो हैं, ये these are fun, correct. But on, if you see the other benefit, that you are getting scores and all, and that is helping you to and to push yourself for the exam, है ना, वो और भी ज्यादा आपको motivate करते हैं. Then we also provide you a creative corner. What is a creative corner? What subscription plans we have as for the creative corner concern is, the first one is your beyond school syllabus. You are not only getting your school syllabus, but it is beyond that. Suppose if you want to learn robotics, you want to learn business administration, about Indian history through ages, which is definitely not in your subject and not as your subject, तो आप इसको कहाँ पढ़ सकते हो? If you have that interest, then you can definitely join this. Plus
where you are getting the benefit of getting more information. Next, you also get to entertain yourself. Here you are learning your entertaining abilities as well. Suppose I am a music lover, I love to sing, I love to play music, so I can go there and I can learn more about music कि कैसे बनता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, how to improve myself. So we also take magic tricks classes, filmmaking. So basically these are very very entertaining. Correct. Then Orators Corner. In Orators Corner, what are we providing? We provide debating skills, public speaking skills, effective communication skills. So basically, your public speaking, your communication is getting it very, very strong. Yes, suppose I have knowledge, ठीक है, but I don't know how to speak in public. So मेरा knowledge is a waste. ना मैं सिर्फ अपने तक ही रख सकती हूँ. I cannot spread. I cannot enlighten some other lives. But you can do it by joining an academy. If you are a book lover, if you are a bookworm, then this corner is a definitely yes for you. Here what you get: blogging, mastering storytelling, sorry, and book club and so more and so forth. है ना? आप बुक, अगर आपको बुक्स पढ़ना पसंद है, बुक लिखना भी पसंद है, तो यहाँ पे आप ब्लॉगिंग कैसे करी जाती है, जैसे मान लो आई एम अ वेरी फूडी पर्सन एंड आई लव टू ईट एंड आई लव टू राइट अबाउट फूड, तो वो सारी चीजें मुझे कौन बताएगा, बिकॉज आई डोंट नो, आई एम अ वेरी फ्रेश पर्सन इन राइटिंग. तो ये बुक लवर्स कॉर्नर आपको वो जरूर हेल्प करता है. करेक्ट. If you want to join plus subscription, except for your syllabus, except for your exam, and just for the creative corner, you can go for it. It's all available. ठीक है. So, what do you get in the plus subscription? Your access to the best of Unacademy, daily life classes where you're chatting with your educator, engaging in discussions, ask your doubts and answer polls, all while the class is going on. तो जब तक क्लास चल रही है आप ये सारी चीजें कर सकते हो. आप अपने एजुकेटर को हाय हेलो मैम ये क्वेश्चन बता दो, सर ये क्वेश्चन बता दो, ये सर कैसे हुआ नहीं हुआ, वो सारी चीजें आप कर सकते हो. ठीक है, बिकॉज इट्स लाइव क्लास. Then structured courses. In structured courses, all our courses are structured in line with your exam syllabus to help you best prepare for it. Basically, it means what? That your syllabus are being made in such a way that within a specified time आपका syllabus खत्म हो जाएगा और आपको burden भी नहीं लगेगा. ठीक है ना? Then after that we organize live tests and quizzes. Yes, we take mock tests, quizzes. कभी कभी surprise test होता है, कभी कभी marathon चलती है quizzes की. तो ये सारी चीजें आपके जो आपने पढ़ रखा है उसको और अपग्रेड करती है. Then you also get unlimited access. Unlimited access, what it means? What it means? What it means is basically unlimited access gives you one subscription. One, you have to get one subscription, and after that you can access the app whenever you want, wherever you want. है ना? सपोज क्या होता है ना कि अब पढ़ रहे थक गए, अब कुछ करने के लिए नहीं है, what to do, then you can go on an academy and see some classes that is for free. Correct. We also organize special live classes which are definitely for free, so you just have to unlock the free classes using my code. You can use my code as Kumari, Kumari. Okay, so this subscription plan plus subscription starts from rupees 800 per month. सिर्फ 800 रुपए. वाह, 800 रुपए में यू आर गेटिंग सो मेनी बेनिफिट्स. 5 सब्जेक्ट भी हो जाते हैं, क्रिएटिव कॉर्नर भी मिल जाता है, तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. करेक्ट. So in comprehensive syllabus we cover all of your 5 subjects: math, science, English, social science, Hindi, like that. Okay, so for all these benefits, what do you have to do? You just have to download the app. Unacademy Learning app karo download, install it, and click on the manage goals plus sign and get the subscription. If you have any kind of queries related to the subscription कि कैसे करना चाहिए, क्या पेमेंट होनी चाहिए, वो सारी चीज़ों के बारे में अगर आपके पास कोई क्वेरीज हैं तो यू कैन ऑलवेज फील फ्री टू आस्क अस through chat. You can chat with us and I'll resolve your queries. है ना? So this subscription plan is basically for class 6 to 12. मैं जो सब्सक्रिप्शन के बारे में बता रही हूँ that is very very cheap. ठीक है, and the best that we have here is 12 months and 24 months for you. If you are in class 12 तो आपको, sorry, not class 12, I meant you are in already in class 8, तो आपके लिए मेरे हिसाब से 12 मंथ्स और 24 मंथ्स ही सबसे बेस्ट रहेगा. बिकॉज आप देख सकते हो कि पर मंथ
भी बहुत कॉस्ट कम है. एंड सी, अगर आप 36 मंथ्स के लिए जाते हो तो देन यू हैव जस्ट हैव टू पे 800. एंड दिस, mind it, once you take the subscription, it is just one time benefit that you are going to get, so why not to use it to the fullest. So you just have to pay 13,500 or 22,500, and if this price is seems very very high, then आप इस पे एक 10% का डिस्काउंट लगा सकते हो. वो 10% का डिस्काउंट आपको कैसे मिलेगा? by using my code, which is Kumari, Kumari, and you are awesome. You get 10% off. ठीक है, you apply my code, select the package, and good to go. ठीक है. You can also join us on the Telegram channel, Telegram app. This is our link where you can join us so that you will be notified time and again that when the educator is going to take the class. आप particular कौन से सब्जेक्ट के लिए कर रहे हो वो भी आता है, कौन से क्लास में और कितने एजुकेटर्स हैं, वो क्या पढ़ा रहे हैं वो भी आपको पता चलता है. सपोज आई एम एन एसएसटी एजुकेटर एंड यू आर a student of mine, and plus you want to get some more information about SST. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप क्लास सिर्फ मेरे साथ ही कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो गो फॉर सम अदर एजुकेटर्स ऑल्सो, बिकॉज we have multiple educators, we have multiple batches of the educators also. I will take minimum 2 to 3 class in a day. तो मेरे भी कल multiple classes चलते हैं, तो where you can come and ask your queries. ठीक है. So let's start our topic for today, which is understanding our criminal justice. I will remember you time and again. I will make you remember time and again कि ये system, it is how it is very very helpful and how it is actually trying to bring that to stabilize the democracy in our country. अगर ये criminal justice system ना हो तो उसके क्या losses हो सकते हैं, है ना? So yes, we are going, suppose sometimes we see that we have police around, we have uh, criminals around, right? किसी ने मान लो कि कोई रूल ब्रेक करा, ठीक है, someone has violated the law, then we immediately think of reporting it to the police personnel, है ना? हम लोग बोलते हैं कि पुलिस वाले को बता देना चाहिए. जैसे मान लो कि कहीं पे एक्सीडेंट हुआ, सपोज, ठीक है, कहीं पे एक्सीडेंट, कोई रोड एक्सीडेंट हुआ, और यू आर द गुड सिटीजन ऑफ द कंट्री, सो यू हैव इन्फॉर्म द एम्बुलेंस एज वेल एज द पुलिस कि भैया इधर आ जाओ, देख लो, दिस हैज बीन हैपेंड, दिस हैज एक्चुअली हैपेंड, व्हाट टू डू, यू कम एंड सी. So if then the police, they got the FIR, they got the reports, then they start arresting persons who are actually involved in the crime. जिन जो guilty होते हैं या नहीं होते हैं, उनको वो विटनेस, कोई कोई विटनेस बनता है, कोई विक्टिम होता है, कोई एक्चुअली में क्रिमिनल होता है, तो वह सारी चीज़ों को पता करने के लिए कौन होता है? पुलिस. ठीक है. आफ्टर अ पर्सन इज अरेस्टेड, इट इज अ कोर्ट ऑफ लॉ दैट डिसाइड्स वेदर द अक्यूज्ड पर्सन इज गिल्टी और नॉट. जिस पे आरोप लगा है, जिस पे लालचन लगा है, क्या वो गलत है, क्या वो गिल्टी है या नहीं है, दैट इज डिसाइडेड बाय द कोर्ट. सी द पुलिस पीपल, दे डू व्हाट, दे जस्ट अरेस्ट द अक्यूज्ड. वो जिस पे आरोप लगे हैं वो उसको अरेस्ट करते हैं, उसके खिलाफ रिपोर्ट फाइल करते हैं, करते हैं केस, एंड देन दे स्टार्ट ट्राइंग टू इवेल्युएट हिम, ट्राई टू ब्रिंग सम विटनेसेस कि क्या वो सही है या गलत है. तो एंड देन द फाइनल से इज अबाउट द जस्टिस. ठीक है, इज फ्रॉम द जस्टिस. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, एवरी इंडिविजुअल चार्ज ऑफ अ क्राइम हैज टू बी गिवन अ फ्री ट्रायल. पहले क्या होता था ना कि कोर्ट नहीं था, तो जैसे अगर किसी ने बोल दिया, पहले एकदम जब हम इंडिपेंडेंट नहीं थे, तब ये फ्री ट्रायल वाली सीन नहीं थी. ठीक है, दिस फ्री ट्रायल मीन्स व्हाट, क्या होता क्या है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ठीक है ना. ये फ्री ट्रायल क्या होता है? दिस इज टी. ओके, अब मैंने शायद जे की तरह लिख दिया है, बट दिस इज फ्री ट्रायल. फ्री ट्रायल मीन्स व्हाट, दैट सपोज मेरे को आरोप लगे, मेरे ऊपर आरोप लगे हैं, मैंने कुछ किया नहीं लेकिन मेरे ऊपर आरोप लगा हुआ है. तो in order to prove my innocence, I will be getting a chance in the court to present myself. That is called free trial. In a very simple language, जो जिसके ऊपर आरोप लगा रहता है उसको अपनी innocence, अपनी क्या बोलते हैं हम उसको, भोलापन बता सकते हो आप. ठीक है, कि वो सही है, उसने कुछ नहीं करा है. दिस innocence, if he has to prove, he has to be given a fair chance. करेक्ट. फेयर चांस के लिए कहाँ जाएंगे? तो उसी को हम कहते हैं फ्री ट्रायल. सो दिस कोर्ट हैज बेसिकली गिवन द अक्यूज पर्सन द राइट टू
present themselves to give them the accused has been given a chance where he is going to present himself to prove that he is innocent. कोई जेल तो जाना चाहता नहीं है, कोई लाइफ imprisonment में जाना नहीं चाहता, कोई फाइन नहीं भरना चाहता, तो ऑब्वियसली दिस इज द राइट. यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एवरीबडी शुड हैव द राइट टू प्रेजेंट इटसेल्फ. करेक्ट, दिस इज राइट टू फ्रीडम. तो अकॉर्डिंग टू दैट दिस फ्री ट्रायल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये हमारे जस्टिस सिस्टम में है. सो कभी आपने एफआईआर के बारे में सुना है? ये सारी चीजें हम पूछेंगे, ठीक है? ये सारी चीजों को हम आंसर करेंगे कि कभी आपने सुना है कि फ्री ट्रायल का मतलब क्या होता है, या एफआईआर क्या होता है, या एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है. सो इन दिस चैप्टर बेसिकली वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट व्हाट इज फ्री ट्रायल, हु इज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, हु इज द पुलिसमैन, व्हाट आर देयर रोल्स, एफआईआर करना क्या होता है, कब तक कर सकते हैं. सो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, every individual charged of a crime has to be given a free trial. So according to the constitution, what is, मैंने आपको पहले ही बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो भी इंसान के ऊपर चार्जेस लगे हैं, यानी द पर्सन हु हैज बीन अक्यूज्ड, ओके, द पर्सन who has been accused of a crime has to be given a free chance, a fair chance for presenting itself, for presenting himself or herself that he is or she is innocent. So basically, free trial is a presentation of himself or herself for proving innocence. ठीक है? For proving innocence. In order to prove that I am innocent, obviously ना, अगर मेरे पर अलार्चन लगा है, then मेरे पास हक होना चाहिए, ये राइट होनी चाहिए कि मैं अपने innocence की, या मैंने I am not guilty, I plead not guilty, then for that I should be getting a free trial. Correct. So who are the players that are involved in the criminal system? First, take for example, before going to the players, let me narrate you a story. है ना? ऐसे करने से ज्यादा क्लियर होता है उसमें कौन कौन होता है, नहीं होता है, वो सारी चीजें आपको पता चलनी चाहिए. पर कैसे पता चलेंगी? प्लेयर्स जैसे कि मान लो कि वी हैव 4 प्लेयर्स: द पुलिस, द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, द डिफेंस लॉयर एंड द जज. ठीक है? अगर मैं मान लो एक डिस्ट्रिक्ट जज की मैं बात करूँ, या डिस्ट्रिक्ट में ये केस लड़ा जा रहा है, देन स्टिल वी हैव 4 प्लेयर्स: द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, द पुलिसमैन, द डिफेंस लॉयर एंड द जज. तो दीज आर द 4 प्लेयर्स. मान लो कि क्या हुआ है, आई वॉज गोइंग टू सम प्लेस, मैं कहीं जा रही थी, एंड आई हैड एंटर्ड into an accident, गलती से, टच वुड ऐसा कुछ ना हो, आई बिलीव दैट, I have that faith कि ऐसा कुछ ना हो, बट सपोज आई हैव एंटर्ड इनटू एन एक्सीडेंट, तो और मेरा किसी ने मुझे जानबूझ के ठोक दिया, ठीक है? उस वो भी गाड़ी चला रहा था, उसने मेरी देखी नहीं, या उसने देखा कि आई एम कमिंग, उसने ठोक दिया गाड़ी को, है, तो उसमें मुझे चोट लग गई. बट मुझे पता है कि सामने वाला ने मुझे जानबूझ के ठोका. सो व्हाट कैन आई डू? आई एम गोइंग टू रेस माई case with the police first. I am going to file an FIR, first information report. I am going to file the first hand information, or you say first information report, with the police that yes, I have been hurt, I have been entered into an accident, and this particular person, एक नाम मैंने दे दिया कि मान लो कि कोई एक्स, मान लो एक्स, ठीक है? एक्स इज द पर्सन who has intentionally hitted me with his car. ठीक है ना? So he has become the accused. According to me, he is the accused person, and the police, what is he going to do? He is going to arrest the accused. He is going to arrest the ex, because I am in the bed in the hospital. तो भैया मुझे तो वो arrest करेंगे नहीं. So they have arrested X1. ठीक है? उसने X को कर लिया. Then the public prosecutor, suppose I was able to file the FIR, but I didn't have the money. So the public prosecutor is the person who is going to raise my PIL in the court. So he will be my lawyer. He will be the lawyer of the victim. ठीक है? Basically, normally जिसके against he is an official
गवर्नमेंट ऑफ दी सॉरी ऑफिशियल पर्सन, गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं ये। इनका काम होता है टू फाइट फॉर दी पुअर पीपल बेसिकली, ठीक है ना, ये गवर्नमेंट पीपल होते हैं। देन ऑब्वियसली अगर मैंने अपना एक लॉयर को सिलेक्ट किया है जो मेरा प्रोसिक्यूटर बना, तो अक्यूज का भी एक लॉयर होगा जो अपने आप को डिफेंड करेगा, राइट? सो हिज लॉयर विल बी कॉल्ड एज डिफेंस लॉयर बिकॉज हिज केस इज बीइंग डिफेंडेड बाय दी लॉयर। लॉयर जो उसका जो लॉयर है, ये प्रोसिक्यूटर भी लॉयर होता है और लॉयर भी लॉयर, डिफेंस लॉयर भी लॉयर होता है। पर दोनों में डिफरेंस कहाँ हो जाता है? जो विक्टिम होता है उसका लॉयर को कहते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और जिसके खिलाफ केस करते हैं, अगर उसने एक लॉयर हायर करा है तो उसके लॉयर को हम कहते हैं डिफेंस लॉयर, ठीक है? And the fourth person that is involved, the fourth important person who is involved in this criminal justice system is the judge, ठीक है ना? The judge has the final say कि क्या वो गलती है या नहीं है। डिफेंस लॉयर इज गोइंग टू डिफेंड हिज क्लाइंट, हिज अक्यूज पर्सन जिसके ऊपर केस हुआ है, ही इज गोइंग टू डिफेंड हिज क्लाइंट, वो अपने क्लाइंट को डिफेंड करेगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या करेगा? वो बताएगा कि अक्यूज्ड क्यों गिल्टी है। He is going to bring certain witnesses, certain evidences which is against the accused, and then as a result accused can be penalized according to the IPC section, ठीक है? IPC stands for Indian Penal Code. So ये जो जज है, जो जिसकी फोटो मैंने लगाई है, he is the Chief Justice of India. He is heading the Supreme Court currently. His name is Shri Sharad Arvind Bobde, Bobde or Bobde, I don't know. Yeah, Shri Sharad Arvind Bobde. So he is currently the CGI or you say Chief Justice of India. कंट्री में एक ही चीफ जस्टिस होते हैं, जस्टिस बहुत सारे होते हैं, ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक ही चीफ जस्टिस होते हैं। देयर इज अ पैनल हु सिट्स इन दी कोर्ट रूम, बट वो पैनल कहलाते हैं। चीफ जस्टिस हमारे एक ही होते हैं। सो ही इज द पर्सन जिनके पास सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी रहती है इन इंडिया, ठीक है? सो व्हाट इज, सो वी विल लर्न अबाउट व्हाट इज द रोल ऑफ पुलिस in investigating a crime. See, police is not an individual. Police is not somebody who will be saying that जो accused है he is the defaulter या he should be hanged till death या उसको जेल में ही रहना होगा। No, police has a role regarding investigating a crime. The police are always engaged in investigating the crime, कैप्चरिंग द अक्यूज्ड, उसको विटनेस, उसके लिए अगेंस्ट विटनेस को लाना, ठीक है ना? सो दिस द रोल ऑफ पुलिस इन अ वेरी सिंगल लाइन आई कैन से दैट ही इज इन्वॉल्व ऑलवेज engaged in investigating a crime. So in order to investigate any complaint about the commission of a crime, जो भी क्राइम हुआ होगा उसके कंप्लेन के अगेंस्ट वो इन्वेस्टिगेट करते हैं। सपोज एक जैसे मैंने रोड एक्सीडेंट का एग्जांपल दिया, आई एम ऑन द बेड, मेरे हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, तो मैंने आई हैव रेज्ड अ कंप्लेंट विद द पुलिस। So the complaint will be raised by the police and they are going to file an FIR, first information report, and then they will try to investigate. They will be investigating the कंप्लेंट एंड दे विल ट्राई टू रिजेंबल इट कि वो क्राइम कब हुआ, किसने किया, वो सारी चीजें वो उनका काम होता है, ठीक है ना? सो दिस इन्वेस्टिगेशन व्हाट इट एक्चुअली इंक्लूड्स, द इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेस and collecting different kinds of evidence. Suppose I have been hurt by in a road accident, then I will be the witness of that क्राइम, जो क्राइम हुआ है उसका विटनेस मैं होंगी यार, और भी अगर किसी ने देखा होगा कि वो कैसे हुआ, वो एक्सीडेंट कैसे हुआ, तो दोज इंडिविजुअल्स विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज दी विटनेस, ठीक है ना? मतलब वो साक्षात थे, उनके सामने हुआ है ये क्राइम। सो द पुलिस इज गोइंग टू डू व्हाट, दे आर गोइंग टू रिकॉर्ड द स्टेटमेंट्स, वो हमारी बातों को लिखेंगे, दिस इज रिकॉर्डिंग, ठीक है? वो राइटिंग में होता है, ऐसा नहीं है कि वो वीडियो क्लिप्स में होता है या बस बोल दिया तो वो हो गया, नहीं। FIR में ये सारी डिटेल्स होती हैं।
एंड कलेक्टिंग, एंड दे ऑल्सो डू वॉट, दे स्टार्ट कलेक्टिंग डिफरेंट काइंड ऑफ एविडेंस. खाली विटनेस का कहना इनफ नहीं है. वो देखेंगे कि वो रोड पे जो गाड़ियां थी वो किसकी थी, who were driving those cars, कैसे हुआ एक्सीडेंट. सो दे आर गोइंग टू सिमुलेट द सिचुएशन अगेन. जैसा हुआ होगा वैसे वो कोशिश करते हैं कि वो एक सिमुलेशन, वो एक एनवायरमेंट वापस से क्रिएट करें. ठीक है. सो इफ द पुलिस थिंक दैट द एविडेंस पॉइंट्स टू द गिल्ट ऑफ द accused person, then they file a charge sheet in the court. Suppose they found out certain evidences, certain proofs, that certain points that is explaining that the accused जिसके ऊपर आरोप लगा है, he is a party of guilty, वो guilty है, वो गलत है, then they are going to file a charge sheet. A charge sheet will be filed in the court. What is this charge sheet? It is basically a sheet that is prepared where the charges of the crime will be assigned टू दी अक्यूज. अक्यूज के नाम पे एक केस खोल दिया जाता है और उसको पुट अप कर दिया जाता है कोर्ट में. ठीक है. देन देन the police will start investigating for more, and always have to be conducted, the police investigations always have to be conducted in accordance with the law and full respect for human rights. So ऐसा नहीं है कि पुलिस ने अक्यूज्ड को पकड़ लिया तो इसका मतलब है कि वो उसको मारेगी या उसको टॉर्चर करेगी या खुद ही शूट करके मार डालेगी. ऐसा नहीं है. द पुलिस इन्वेस्टिगेशंस हैव टू बी according to the law and the respect of human rights. So human rights, we have human rights. हमें कोई मार नहीं सकता, हमें कुछ ऑब्वियसली वो पूछेंगे तो पूछेंगे, ये हमसे सवाल तो करेंगे, पर ऐसा नहीं है कि वो हमें टॉर्चर करेंगे. इलेक्ट्रिक शॉक दे देना, पानी में डुबो के रख देना, हमारे जख्मों पे नमक डालना, ये जो जो फिल्म में होता है ऐसा पुलिस नहीं करती है. ठीक है ना. एक दो थप्पड़ लगना इज डिफरेंट, पर पूरा मेंटली टॉर्चर करना या फिजिकली टॉर्चर करना ये चीज पुलिस इन्वेस्टिगेशंस में नहीं होता है. ठीक है. बट द पुलिस आर द पीपल हु आर एक्चुअली प्रोटेक्टिंग आवर राइट्स, है ना. वो ह्यूमन राइट्स को दे ऑलवेज कीप इन माइंड कि दोस थिंग्स आर बीइंग, मतलब हमारा राइट्स हैव बीन प्रोटेक्टेड और नो. Okay. Now, so according to Article 22 of the Constitution, according to the Article 22 of the Constitution, the criminal law guarantees to every arrested person the following fundamental rights. जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें 6 राइट्स दिए, उसके अलावा द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गारंटीड दैट एवरी पर्सन जो अरेस्ट हुआ है, जो इसको अक्यूज बोल के अरेस्ट करा गया है, दे आर गोइंग टू एंजॉय सर्टेन फंडामेंटल राइट्स. दे हैव सर्टेन फंडामेंटल राइट्स. जैसे कि पहले तो सबसे पहला कि उसको राइट टू फूड है, इसको तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते. राइट टू लाइफ है, इसका मतलब आपकी कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में कोई मरना नहीं चाहिए, आपने उसको मार नहीं दिया. ये तो पहला एकदम पॉइंट क्लियर होना चाहिए. ठीक है ना. Then after that, the right to be informed at the time of arrest of the offense for which the person is being arrested. यानी कि एक अरेस्ट वारंट होना जरूरी है when you are going to, the police is going to arrest the individual. जब वो अक्यूज को अरेस्ट करने के लिए जा रहे हैं, देन दे शुड ऑलवेज हैव द अरेस्ट वारंट. ये अरेस्ट वारंट हमेशा डिस्ट्रिक्ट जज से लिया जाता है. एंड जब अरेस्ट कर रहे हैं तब उसको, तब उस टाइम पे वो ऑफेंस के बारे में भी बताएंगे कि जो अक्यूज पर्सन है या जो अरेस्ट जो पर्सन हो रहा है उसको वो बताना पड़ेगा. पुलिस इज गोइंग टू टेल हिम दैट व्हाई आर यू बीइंग अरेस्टेड, व्हाट ऑफेंस हैज यू कमिटेड. तो कौन सी ऑफेंस आपने कमिट करी है जिसके लिए आपको अरेस्ट किया जा रहा है. ये चीज सबसे पहला राइट है जो अरेस्टेड पर्सन को मिलती है. सेकेंड वन इज द राइट नॉट टू बी ill treated or tortured during arrest or in custody. So yes, I have already said that कि the person who is being arrested will not be tortured या ill treated. जैसे मैंने बोला खाना नहीं देना, उसको एकदम काट काट के उसके ऊपर नमक छिड़कना, ऐसा चीजें नहीं करते हैं. पुलिस कस्टडी में आपसे सवाल जवाब होता है, आपको थोड़ा सा शायद क्या कहते हैं, थोड़ा सा हल्ला करेंगे आपके ऊपर, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको मारेंगे या गला पकड़ के दबा देंगे, ऐसा कुछ नहीं करते. सो यू आर नॉट गोइंग टू बी इल ट्रीटेड या टॉर्चर्ड. सो दिस इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स दैट इज गिवन टू द अरेस्टेड पर्सन. कस्टडी में अगर आप हैं, कस्टडी का मतलब क्या है कि आपका देख रेख होगा, आपसे सवाल जवाब किया जाएगा. उस देख रेख में आपको मार नहीं दिया जाएगा या आपको मिसट्रीट किया जाएगा, ऐसा नहीं है.
ठीक है ना? जो ये फ़िल्म्स, मूवीज़ में दिखाते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पुलिस वाले लोग धाम-धूम मार रहे हैं, सवाल-जवाब कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इतना मुँह ये सब फोड़ना-फाड़ने वाला काम नहीं करते वो, है ना? रियलिटी में, दैट इज़ नॉट देयर। नेक्स्ट, confessions made in police custody cannot be used as evidence against the accused। यानी कि जैसे कि मान लो ना कि कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में आई वाज बीन अक्यूज, तो मेरे को जेल में रखा था। उन्होंने मुझसे जो स्टेटमेंट लिखवाई या जो मेरे से एविडेंस मांगे और उस पे मैंने बोला कि ठीक है चलो, आप मेरे को इतना टॉर्चर कर रहे हैं, सो लेट मी साइन इट। मैंने बोला ठीक है, आपके जो भी कन्फेशंस हैं जिस पे मेरे को आप बोल रहे हैं साइन करने के लिए, लाओ मैं कर देती हूँ उस पे साइन, ताकि आप मुझे टॉर्चर ना करें। बट दिस कन्फेशन to the see, this confession is basically not been accepted as evidence against the accused। क्योंकि पता है क्या बोलती है, द कोर्ट सेज कि मार धाड़ के, डरा डरा के अगर पुलिस वालों ने साइन करवा लिया तो उसका प्रूफ क्या है? मान लो कि सामने वाला गलती है ही नहीं उसकी, लेकिन वो इतना मार खा रहा था बेचारा कि उसने जानबूझ के साइन कर दिया उस कन्फेशन पे कि हाँ, मैंने ही ये क्राइम किया है, इतने तारीख को किया है, यहाँ किया, इसको मार दिया, उसको मार दिया। पर उसने थोड़ी किया। अगर उसने नहीं किया तो उस पे अगर उसने साइन कर दिया तो इसका मतलब वो गिल्टी हो गया। पर कोर्ट सेज कि नो, दिस काइंड ऑफ कन्फेशन इन द कस्टडी विल नॉट बी एक्सेप्टेड एज एविडेंस। तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेड एज एविडेंस। ठीक है? तो वो, पर हाँ, पुलिस का काम ज़रूर होता है कि वो कन्फेशंस ले, कन्फेशन रिकॉर्ड करे, पर वो एविडेंस की तरह नहीं होता। दैट इज़ व्हाई दे हैव टू फाइंड सम मोर एविडेंसेस, सम मोर विटनेसेस जो उस अक्यूज के खिलाफ हो। तो दैट इज़ देयर जॉब। ठीक है ना? कन्फेशंस लेना भी ज़रूरी है। हाँ, कोई कुछ खुद ही जाके बोल रहा है कि हाँ, आई हैव डन दिस क्राइम, दैट इज़ द कन्फेशन, बट दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट। तो अगेन द पुलिस हैज़ टू ब्रिंग सर्टेन मोर, some more evidences। ठीक है? Then a boy under 15 years of age and women cannot be called to the police station only for questioning। यानी कि if आप लोग की उम्र क्या हो रही होगी, इन क्लास 8 तो 12-13 साल की हो रही होगी, है ना? तो आपको अगर कुछ क्वेश्चनिंग, मान लो कि आपने कुछ देखा हो, आप कहीं के विटनेस हो, तो आपको लेकिन क्वेश्चनिंग के लिए, सिर्फ क्वेश्चनिंग के लिए आपको पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जा सकता। आई एम अ गर्ल, आई विल नॉट बी कॉल्ड इन टू द पुलिस स्टेशन फॉर जस्ट क्वेश्चनिंग। मुझे क्वेश्चनिंग के लिए नहीं बुला सकते। ठीक है? अगर आपको पूछना है तो आप आए, और ऐसा भी है, देर आर सर्टन मोर राइट्स दैट इज गिवन टू दी वुमेन स्पेशली, दैट आफ्टर 6 o'clock इन द इवनिंग, या शाम जब हो जाए, एंड टिल 6 a.m. in the morning, you cannot arrest the women। आप women को arrest ही नहीं कर सकते। एंड when you are going to arrest a woman, आप अगर एक औरत को arrest करने जा रहे हैं, then you should always have a woman, one woman in your, at least one woman in your कस्टडी। मतलब आपके आपके डिपार्टमेंट से कोई एक लेडी ज़रूर होनी चाहिए। सिर्फ़ आप मेन जाएँगे तो वो अरेस्ट नहीं होगी। शी कैन से दैट आई विल नॉट गो विथ यू बिकॉज़ ऑफ सम सेफ्टी राइट्स। ठीक है ना? तो दिस हैज़ बीन गिवन टू द वुमेन स्पेशली, एंड टू द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 15 दे कैन नॉट बी कॉल्ड टू द पुलिस स्टेशन। नहीं बुलाया जा सकता उनको, सिर्फ़ क्वेश्चनिंग के लिए, सवाल-जवाब के लिए। सो मैंने इतना ज़्यादा बात करा कि व्हाट इज़ एफआईआर लॉन्च करती है, एफआईआर फाइल करती है पुलिस। तो व्हाट इज़ दिस एफआईआर बेसिकली? व्हाट डज़ एन एफआईआर डू? या व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एफआईआर? So the law states that it is compulsory for an officer in charge of a police station to register an FIR whenever a person gives information about a cognizable offense। Suppose a person has come to the police station, या नहीं आया police station, but the police has went to that person जिसने ये offense देखा हो, ये crime देखी हो, and if the person is giving certain information, then it becomes the right, it becomes the compulsory action of the officer in charge। तो पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज होंगे, उनको एफआईआर को रजिस्टर करना ही पड़ेगा। दे के नॉट से कि हम रजिस्टर नहीं करेंगे। ऐसा बहुत केसेस में हुआ, बहुत सारे गांव में ना होता था कि पुलिस वाले रजिस्टर ही नहीं करते थे। एक गरीब आया, उसने बोला कि पुलिस सर, पुलिस ऑफिसर, ये ना, ये मेरे धान वान इन्होंने चोरी कर ली।
पर वो जो जिसने चोरी की वो बहुत धनवान था या बहुत ज़्यादा वेल्दी था, तो उसने पुलिस वाले को पैसे खिला दिया, उसने बोला रजिस्टर ही मत करना एफआईआर, क्योंकि एफआईआर इज़ समथिंग दैट इज़ रजिस्टर्ड इन द पुलिस स्टेशन, है ना? और रजिस्टर्ड का मतलब इट इज़ रिटन, एंड यू हैव, आई होप यू नो दैट कि जो भी रिटन इन्फॉर्मेशन होती है, उसकी वैल्यू ही अलग होती है, दी इट इटसेल्फ बिकम्स एन एविडेंस। एफआईआर इज़ योर फर्स्ट इंफॉर्मेशन, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है? इट फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। So according to this FIR, if the policer, I'm saying sorry, not the policer, the officer in charge of the police station has to register an FIR whenever he comes to know about an information given by a person about a cognizable offense. यानी कुछ भी ऐसी चीजें जो रिकॉग्नाइज्ड हैं, जो जिस जो ऑफेंड हुआ होगा, उसके बारे में जरूर एफआईआर लिखना ही जरूरी है। तो इट बिकम्स द वन ऑफ द, हम ऐसे नहीं कहते, ही इज बीइंग obliged टू राइट इट, ठीक है? सो दिस इंफॉर्मेशन कैन बी ओरल और इन रिटन। जो इंफॉर्मेशन ये पब्लिक, ये पर्सन आके दे रहा है, इट कैन बी ओरल और इन रिटन। अगर मैंने देखा है, मेरे आंखों देखा है, तो मैंने बोल दिया कि मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि मैंने यहाँ देखा है कि एक ऑफेंस हुआ, या ऐसा हो सकता है दैट मैंने वो इन्फॉर्मेशन लिख कर एफआईआर के लिए दी, मैंने ये पुलिस इंचार्ज को दी। सो दैट इन्फॉर्मेशन कैन बी ओरल और इन रिटन, बोल के भी हो सकता है और लिख के भी हो सकता है, ठीक है? सो एफआईआर यूजुअली मेंशंस डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ द ऑफेंस। हाँ, डेट, टाइम, प्लेस तो होना सबसे पहले जरूरी है। देन इट ऑल्सो गिव्स the details about the basic facts of the offense including the description of events। मतलब ना, अगर वो इंफॉर्मेशन, सपोज जैसे मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ, तो मैंने बताया कि इतने तारीख को हुआ, इस जगह पे हुआ, ये जगह, ये टाइम चल रहा था उस टाइम, इतना टाइम होगा लगभग, इफ आई से कि इतना लगभग, बिकॉज वी कैन नॉट बी एज श्योर कि मतलब 12 बजे ही ये एक्सीडेंट हुआ, ऐसा नहीं कह सकते। हम बोल सकते हैं उसके आसपास हुआ, मैं जा रही थी कुछ काम से, एंड मैंने कुछ बेसिक फैक्ट्स बताए कि मैंने देखा सामने से एक गाड़ी आते हुए, जिसकी रेड कलर की गाड़ी थी, जिसका नंबर ये था, सम काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शन मस्ट बी प्रेजेंट। अगर ये नहीं भी है, देन द इट बिकम्स द राइट ऑफ द पुलिस ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट इनटू इट, ठीक है ना? सो इफ नोन, इफ in the FIR the person knows the who is giving the information, the know he knows the identity of the accused person and witness is also mentioned। मतलब मैंने ऐसे बोला कि मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ, दिस इज द अक्यूज पर्सन, मेरे पास कुछ और अदर एविडेंसेस या कुछ और अदर विटनेसेस भी हैं, सो वो उन सब का भी नाम उस एफआईआर में होता है, ठीक है ना? देन ऑल्सो द नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंप्लाइनेंट इज मेंशन, यानी कि मेरे एड्रेस, मेरा नाम, क्योंकि मैं कंप्लेन कर रही हूँ, तो मेरा नाम, मेरा एड्रेस भी मेंशन होगा। देन एफआईआर इज बेसिकली अ प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म टू रजिस्टर यू। एफआईआर ना एक पूरे पूरे एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म होती है टू रजिस्टर द एफआईआर, एंड इट इज मैंडेटरी साइंड बाय द कंप्लायंट। कंप्लायंट जो कंप्लेन कर रही हैं या कर रहे हैं, उनकी सिग्नेचर होना सबसे ज्यादा जरूरी है। एंड एफआईआर विदाउट एनी सिग्नेचर डजंट हैव एक्चुअल मीनिंग, ठीक है ना? तो किसके खिलाफ कौन कर रहा है कंप्लेन, भैया वो तो बताना पड़ेगा ना, क्योंकि अक्यूज पर्सन को तो जानना पड़ेगा, बिकॉज ही इज एंजॉयिंग सर्टेन राइट्स। सो एंड द कंप्लेनेंट कैन गेट अ फ्री कॉपी ऑफ द एफआईआर, एक जेरोक्स कॉपी उनको भी दे दी जाती है कि हाँ, आपका एफआईआर हैज बीन लॉन्च इन द पुलिस स्टेशन, द एक्शंस विल बी टेकन प्लेस, है ना? जैसे कि मान लो कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि गाड़ी चोरी हो गई, स्कूटी चोरी हो गया, तो ये सब बहुत ही कॉमन है। तो उसके लिए मैंने एफआईआर लॉन्च करवाई इन द पुलिस स्टेशन, आई हैव लॉन्च द एफआईआर विद द पुलिस स्टेशन। सो एफआईआर विल बी, जब मुझे पता चला तब मैं जाके पुलिस में बताऊंगी। मान लो कि रात में ही चोरी हो गया, बट मुझे सुबह पता चला, तो आई एम गोइंग टू द पुलिस स्टेशन इन द मॉर्निंग एंड आई एम रजिस्टरिंग माई एफआईआर, ठीक है? आई एम रेजिंग माई केस in the police station। So the police station is going to ask for my signature, and he is going to ask me ki do you know who was the person who has actually done it, या वो accused के बारे में पूछे, and if I don't know then it's okay, if known, that is why I said if it is known।
the identity of the accused person and witness, then it is also mentioned in the FIR. But apart from that, मैं ये बताऊंगी कि वो मैंने गाड़ी कहाँ रखी थी, क्या टाइम, कितने बजे लगाई थी, कहाँ से चोरी, और मैं अपने कुछ गाड़ी के डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स भी बताऊंगी, ये इसका नंबर ये है, उसका कलर ये है, ये मॉडल है, लाइक दैट एंड सो फोर्थ, है ना। ओके, देन वो कंप्लेंट को साइन करवाना भी जरूरी था, जरूरी होता है, एंड देन आई विल गेट अ कॉपी ऑफ द FIR। आफ्टर दैट, 1 second, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट इज द रोल ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर? ये मैंने अभी तक जो रोल्स बताए वो थे पुलिस के, अभी हमें देखना है कि हु इज द पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड व्हाट इज हिट्स रोल। ठीक है, सो इन कोर्ट, public prosecutor represents the interest of the state. When I say the state, it means for the common people, or you say the citizens of India, government. In other word, you can say the government or the citizens of the country. The public prosecutor is always in represent, uh, the job of him is to always protect the interest of the government, or the protect the interest of um, the constitution. ठीक है, constitution is a better word rather to use government. We will say कि the constitution is being protected. So the job of public prosecutor is to always keep the interest of the constitution at the top. ठीक है, so what is its role? It basically begins once the police has conducted the investigation and filed the charge sheet in the court. जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन पूरी कर ली, ही दे हैव कंडक्टेड द इन्वेस्टिगेशन एंड देन दे हैव फाइल्ड द चार्ज शीट इन द कोर्ट। कोर्ट में उन्होंने एक शीट प्रोवाइड की कि क्या चार्जेस होने चाहिए, या कौन अक्यूज है, कौन कंप्लायंट है, ये सारी चीजें कोर्ट में बताते हैं। देन he must conduct the prosecution on behalf of the state. So he will be fighting on behalf of the court. This prosecution means the fighting one. ठीक है ना? He is going to fight the case on behalf of the state. He is expected to act impartially. So basically, he is going to act impartial का मतलब है कि there will not be any kind of biasness या any kind of preference, ठीक है, given to anybody. So he is going to act as smooth as he can with full authority, and he is going to present the full and material facts. So whatever information he has conducted, he has received from the police, that information will be presented in full, and those material facts and witnesses and evidence before the court has to be presented to the has to be presented by the public prosecutor. So the public prosecutor is basically going to do what? He is going to present the full information and the material facts in the court. He is going to present some witnesses and evidence before the court कि ये सारी चीजें हुई हैं, ये these particular people are the evidences. अगर ऐसा नहीं है कि अगर लोग नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ पेपर्स हो जो विटनेस की तरह आप कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, we always, whenever we take certain case, जब भी एक केस पुट अप होता है कोर्ट में, देन इट इज नेवर अगेंस्ट टू पीपल, मतलब इट इज नॉट बिटवीन टू पीपल, है ना। एक एक होता है हमारा, एक पार्टी होता है स्टेट, एंड दूसरा पार्टी होता है इन क्रिमिनल कोर्ट जस्टिस स्पेशली, इट इज स्टेट वर्सेस द द अक्यूज पर्सन। ठीक है, it is always state versus the accused person. It is not against two people. ठीक है, या जो विक्टिम है, जिसने अक्यूज पे आरोप लगाए हैं, उनके बीच केस पुट अप नहीं होता। इट इज ऑलवेज अगेंस्ट द अक्यूज पर्सन एंड द स्टेट ऑन द अदर पार्ट, बिकॉज इट फील्स लाइक कि जो गलती हुई है या जो क्राइम हुआ है, इट हैज वायलेटेड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। सो दैट इज वाई, इसका मतलब क्या है कि जैसे कि टेक फॉर एग्जाम्पल डाउरी का केस है ना, डाउरी का केस है, एंड बिकॉज ऑफ द डाउरी वन गर्ल हैज टू डाई, वो मर गई, उसको जला दिया गया, उसके ससुराल वालों ने जला दिया।
तब उस केस में क्या हुआ कि राइट टू लाइफ हैज बीन टेकन अवे फ्रॉम दैट गर्ल ना, उसको जला दिया गया बिकॉज ऑफ द डाउरी. सो द केस विल बी पुट अप एज स्टेट वर्सेस द नेम ऑफ द अक्यूज. ठीक है, अक्यूज का होगा, और अगर उसमें और भी लोग होंगे देन द अक्यूज पर्सन एंड अदर्स, ऐसे करके केस पुट अप होता है. Then the work of the role that the public prosecutor is going to present, he is going to play is basically when he is asking to prepare the witnesses, bring the evidences in the court. He is bringing the full and material facts, whatever he can, whatever he could collect. Okay, so basically this was all about the role of the public prosecutor. Now apart from that, let's see what is the role of the judge. What does a judge has to play in this criminal justice system? Correct. So here, first thing that he is going to do, that he is going to hear all the witnesses and other evidence presented by the prosecution and the defense lawyer. So जो भी prosecution lawyer या defense lawyer ने जो भी evidences provide करे होंगे, जो भी witnesses दिए होंगे, उसको वो बिल्कुल ही impartial तरीके से, मतलब obviously ना ही उसको ना ही वो accused को जानता है, ना ही वो the victim को जानता है. So he is going to hear all the witnesses and other evidences, so that whatever is been presented by the prosecution and the defense. Correct. Then after that, what will happen is, why? Because he has to listen like a neutral person, है ना. He is not going to favor anybody, so he has to listen, he has to hear them out neutral, with the without the without any kind of partiality. ठीक है, वो partiality के बिना उसको उसको तो एक्ट करना है पूरा अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के हिसाब से ही इज गोइंग टू फॉलो इट. ठीक है. Then he is going to decide whether the accused person is guilty or innocent on the basis of the evidence presented and in accordance with the law. So he, now the final say obviously is the role of, is the judge, right? The judge has the final say कि this particular person is guilty या innocent. And वो ये कैसे करेगा? Obviously because he doesn't know the person, and even if he knew the person, अगर वो उस इंसान को जानता भी है, जो अक्यूज्ड है, जिसके ऊपर आरोप लगा है, अगर वो उसको जानता भी है, फिर भी उसको विटनेसेस एंड एविडेंस के तहत ही जाकर उसके खिलाफ या उसके लिए अपनी हियरिंग देनी पड़ती है. ठीक है. सो ही हैज टू फॉलो द लॉ, ही हैज टू फॉलो द एविडेंसेस दैट हैज बीन प्रेजेंटेड इन द कोर्ट, and then only he can decide whether the accused person is guilty or innocent. ठीक है. So if the accused is convicted, then the judge pronounces the sentence. अगर जो accused है वो, उसको हमने guilty पाया, convicted का मतलब he has been found as guilty, then the judge, according to the IPC, ओके, इंडियन पिनल कोड के तहत वो उनको सेंटेंस सुनाते हैं. व्हेन आई से सेंटेंस, इट डजंट मीन अ स्टेटमेंट, इट मीन्स द punishment or you say the penalty. ठीक है, punishment or you say penalty, both. Punishment and penalty सुनाते हैं by the judge. The accused is guilty or not, the accused is guilty or not, that is being pronounced by the, if the judge founds that the accused is guilty, then the judge is going to declare the punishment or the penalty. Correct. Then after that, the process of fair trial, this is the process that is going to say what is a fair trial, and fair trial कैसे present करा जाता है. So the first step is to present a copy of charge sheet in the court. So सबसे पहला चीज होता है जब कोर्ट में एक कोर्ट हाँ, इसका मतलब क्या है, जो कोर्ट के सामने जो केस पुट अप हुआ है उसकी एक कॉपी, चार्जशीट की कॉपी द अक्यूज पर्सन हैज टू अक्वायर, है ना. वो जो अक्यूज है उसको वो कॉपी मिलती है. देन द सेकेंड वन इज व्हेन द ट्रायल इज बीन ओपन इन द ओपन कोर्ट, मतलब वो
कोर्ट में खोल दिया जाता है, करेक्ट? सो सपोज आई कैन से लाइक दैट। हाँ, तो सबसे पहले तो उसे कॉपी ऑफ अक्यूज को एक कॉपी ऑफ चार्जशीट मिलती है। द अक्यूज इज गोइंग टू गेट दी कॉपी ऑफ चार्जशीट की, उसके ऊपर क्या आरोप लगे हैं, किसने किसने लगाया, वो सारी चीजें उसको पता चलती हैं। देन जो भी प्रोसिक्यूशन ने लगाया होगा, है ना, जो प्रोसिक्यूशन लॉयर जो होता है, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, वो बताता है कि आपके ऊपर कौन से केसेस लगाए गए हैं, कौन से चार्जेस लगाए गए हैं। देन it is open in the court, then the trial is being presented in the open court, then हाँ, तो पब्लिक व्यू के अकॉर्डिंग कोर्ट में प्रेजेंट किया जाएगा उस तरीके का ट्रायल। इसका मतलब क्या है कि मान लो कि वो जो अक्यूज पर्सन था उसको पता ही नहीं कि केस कहाँ लड़ा जा रहा है, और चुपचाप से एकदम चुपचाप से सीक्रेट लोकेशन पे कोर्ट की ट्रायल हो गई, ठीक है ना। देन next is the third point where it was held in the presence of accused. So the person जिसके खिलाफ केस किया गया है, उसके प्रेजेंट में ही, उसके प्रेजेंस में ही ये सारा लड़ाई होता था, ठीक है। मतलब जो कोर्ट में जो भी पेशी होती थी या जो भी विटनेसेस प्रोवाइड करे जाते थे, वो सारे अक्यूज्ड के प्रेजेंस में होता था। मतलब जिसके ऊपर आरोप लगा है उसी के सामने प्रेजेंस होना, उसी के सामने केस को प्रेजेंट करना चाहिए। देन फोर्थ वन इज इट वाज डिफेंडेड बाय अ लॉयर। देन द कोर्ट में एकदम केस बता दिया कि चार्जशीट क्या होगा, ओपन कोर्ट में कब ट्रायल होगा, कहाँ पे अक्यूज के ऊपर होगा। ओके, 1 second, ओके, 1 second, यस। So defended, it was defended by a lawyer, ठीक है ना। इट हैज टू बी डिफेंडेड बाय अ लॉयर। ऑब्वियसली अगर एक प्रोसिक्यूटर है तो दूसरा एक डिफेंडेड लॉयर होगा, डिफेंस लॉयर होगा, जो उस अक्यूज्ड के लिए उस अक्यूज्ड के लिए लड़ाई करेगा। जो उसका क्लाइंट होगा उसको हम कहते हैं डिफेंस लॉयर, ठीक है ना। देन द एडवोकेट was given an opportunity to cross examine. So ये basically जो ये defense lawyer है वो क्या करता है, it is basically cross examining all the prosecution witness। जो भी prosecution के witnesses होंगे उनको वो cross examine करता है, वो खुद के विटनेसेस को प्रोवाइड करता है कि नहीं, जो प्रोसिक्यूशन जो बता रहा है वो सारे चीजें गलत है, वो जो भी वो बता रहा है वो सारी चीजें गलत है, ये मेरे विटनेसेस कुछ और बातें करते हैं, कुछ और चीजें प्रेजेंट करते हैं, तो दिस इज रियली रियली कंप्लीटली रॉन्ग, ठीक है ना। सो देन द प्रोसिक्यूशन लॉयर इज गोइंग टू again cross examine the parties, the witnesses presented by the defense lawyer। तो पहले तो देखो, पहले तो आपके डिफेंस लॉयर क्रॉस एग्जामिन करते प्रोसिक्यूशन लॉयर के जो भी विटनेसेस लाए होंगे उसको वो क्रॉस एग्जामिन करते हैं। देन द डिफेंस लॉयर इज प्रेजेंटिंग हिज विटनेसेस, उसको क्रॉस एग्जामिन करते हैं प्रोसिक्यूशन। सो बोथ प्रोसिक्यूशन एंड द डिफेंस लॉयर, prosecution and the defense lawyer is bringing witnesses in the witness and the prosecution and the defense lawyer, they are bringing both their witnesses and they are cross examining each other's witnesses, ताकि जजमेंट, तो जजमेंट किस पे दिया जाएगा, व्हेन द जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द विटनेसेस, द जज इज गोइंग टू से कि ये गिल्टी है या नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ द विटनेस, करेक्ट। सो वंस he has heard everything, he has heard every witness, every party's witnesses, then he is going to pass his judgment, and if he found the accused person guilty, then he will pronounce the sentence, ठीक है। So what is a free trial, is my last slide। फ्री ट्रायल होता क्या है? फ्री ट्रायल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, it guarantees the right to life। That means it states that a person's life or liberty can be taken away only by following a reasonable and just legal procedure।
Okay, so Article 21 of the Constitution is saying that nobody other than the court can take away the life of a person, or liberty of a person. Anybody's right to life or right to freedom can only be taken away uh, by the judge, फॉलोइंग अ रीजनेबल एंड जस्ट लीगल प्रोसीजर। मतलब जो सही लीगल प्रोसीजर होगा या रीजनेबल प्रोसीजर होगा, उसी के अकॉर्डिंग, उसी के तहत किसी भी इंसान की, किसी भी अक्यूज्ड पर्सन की लाइफ या लिबर्टी को छीना जा सकता है। बट नाउ नो अदर देन जज, कोई जज के अलावा ऐसा नहीं कर सकता। यानी कि पुलिस के पास भी ये अथॉरिटी नहीं है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास भी ये अथॉरिटी नहीं है, ना ही डिफेंस लॉयर के पास ये अथॉरिटी है कि वो किसी और की लाइफ या लिबर्टी को छीन सकते हैं। ठीक है ना? देन दैट इज देयर इन द फेयर ट्रायल। सो फेयर ट्रायल, आई विल रिपीट वंस मोर दैट फेयर ट्रायल इज बेसिकली अ चांस गिवन टू द अक्यूज्ड। It is given to the accused, or you can say it is given to the person who has been nominated as the criminal, or has been said that he is the one who has committed this crime. He has been given a chance to present himself. So he is basically given a chance, sorry, let me write it like this, a chance to prove that he is innocent. He has to plead that he is very very innocent. He is going to plead that he is not guilty, sorry, he is not guilty. That is going to be presented in the free trial, and that is what is free trial all about. So every citizens, irrespective of his class, caste, gender, religious and ideological backgrounds, should get a free trial when accused. तो इसका मतलब क्या है कि जब कोई इंसान अक्यूज्ड होता है, तो उसमें हम ये नहीं देखते कि वो कौन से क्लास का है, कौन से कास्ट का है, क्या उसका जेंडर है, रिलीजन क्या है, उसकी क्या आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड्स है। उस सब से परे उसको एक फ्री चांस, एक फ्री ट्रायल दिया जाता है। नॉट फ्री, आई मीन टू से फेयर ट्रायल। ठीक है? फेयर ट्रायल दिया जाता है जहाँ पे ही कैन पुट अप हिज केस एंड से दैट आई एम नॉट गिल्टी, आई एम इनोसेंट, दैट विल बी प्लीडेड बाय हिम। ठीक है ना? सो दिस इज बेसिकली व्हाई, दिस इज हाउ, बिकॉज इट इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट वी आर ऑल इक्वल बिफोर लॉ। खाली कह देना जस्ट बिकॉज यू आर इन पावर, तो कोई ऐसा नहीं है कि द पुअर पर्सन इज रॉन्ग, या पुअर पर्सन गलत है ना? तो दैट इज वाई, जस्ट बिकॉज एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द लॉ, सो इट वुड नॉट मेक एनी काइंड ऑफ सेंस व्हेन द अक्यूज पर्सन इज नॉट गिवन एनी काइंड ऑफ चांस। अगर सिर्फ एक तरफा ना, एक तरफा बात सुनकर आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हो कि वो इंसान गलत है या सही है। सो ठीक है, सो इट वुड नॉट मेक एनी सेंस इफ एवरी सिटीजन वर नॉट गारंटीड अ फ्री ट्रायल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। सिर्फ एक तरफा बात सुनकर ही आप दूसरे पे आरोप लगा दें या दूसरे को गिल्टी प्रूव कर दें, ये चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? सो दिस, इन दिस चैप्टर आई होप दैट यू अंडरस्टूड कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कैसे काम करता है, उसमें कौन कौन से प्लेयर्स होते हैं, व्हाट इज देयर रोल, वो क्या करते हैं, एंड ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है ना? ओपन कोर्ट में जाता है, चार्जशीट फाइल होती है, डिफेंस लॉयर, प्रोसिक्यूटर लॉयर अपने अपने विटनेसेस लाते हैं, उनके विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिन करते हैं, वो दोनों पार्टी एक दूसरे के विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिन करते हैं, एंड द फाइनल से depending upon the witnesses is been given by the judge. If you so this was all about the background of about this chapter. If you have any kind of queries, you are free to ask me through chat, with no doubt मैं आपको जरूर जवाब दूंगी। ठीक है? So if you really like my video, please give it a like, share and subscribe. That's all from my side. This is Neha Kumari signing off. Before signing off, let me tell you that if you like my video, you have to like it, you have to give it a hit sign, hit bell icon also, so that you will be notified in the future कि मेरी क्लास कब होने वाली है, and I am sure that I am going to bring same, in the same way, some more interesting chapters, some more interesting facts about the constitution, and some more topics related to class 8. Also, you can join us on the Telegram app. This is our that is available in the video link, video description में है, and
please do go and subscribe the Unacademy app, unlock free classes, unlock free special classes using my code, so that you will be notified whenever you want to take that class. Okay, that's all from my side. Thank you. Take care. Bye bye.